everyone. Today we have a topic is called motion. So motion is a part of biomechanics. What is motion? When an object is moving from their particular position from A position to B position, or maybe any object which changes their position with time, with respect to time, that's called a motion. For example, just imagine this is an type of road or something, and there is a vehicle. Okay, it's a vehicle. Okay, when this object is moving toward is something what, like this object is moving through little bit, and then this object is coming here. Okay, this object is coming here. So this object actually, this is the initial and this is a final point, right? So this object is changes their position from initial to final. It's travel from this that much of distance. That is the initial and that is a final. So that object is actually motion with time. Kuch time to like seconds and in minutes. So that's why it's called a motion. Okay, I hope you guys understand what is motion. आप यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी देख रहे हो, that's called a displacement. What do you understand about displacement? Actually, अगर हम मोशन को बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं, that is called a displacement. Also in mathematics, okay. एक बुकी से अगर हम एग्जांपल ले, डेफिनेशन है, that is called the motion is a mathematically described in terms of displacement, or to study motion in kinematics we use term called the displacement for the motion. Okay. That means अगर हम यहाँ पे मोशन बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है in biomechanics. Now you can see on here the topic which is called subtopic actually, 5 variables of motion. I'm already telling you motion or displacement we have a same word in the biomechanics subject because motion को displacement ही हम बोलते हैं. और हाँ, one more thing, motion is a vector, a scalar quantity. It's not a vector quantity. Don't forget, जो motion होता है हमारा, that is called an scalar quantity. SCALAR, scalar quantity. So motion is a scalar quantity. Okay, and displacement whatever we call in biomechanics. So 5 variables of motion. What is 5 variables of motion? Types of displacement. These are the variables of motion. Types of displacement, location of displacement, direction of displacement, magnitude of displacement, and rate of displacement. So what is the 5 variables of displacement? That is types of displacement, types, location, direction, magnitude of displacement, and rate of displacement. So these are the 5 variables of displacement. Okay, now we're going to talk about the types of displacement. So we have after our next subtopic, that's called the types, which is really important part of the biomechanics of motion. So motion is basically divided into 3 types. Translatory motion, okay, TRANSLATORY. This is called the translatory motion. This is the first one type. The second one is called the rotatory motion, and third is called the general motion. So what is the basic, I'm gonna say basic definition, So translatory motion is what? Is something which is go straight, both of the point. Like for example, translatory motion also known as a linear displacement motion. Translatory motion is also known as a linear displacement motion. Rotatory motion is also known as an angular motion. Rotatory is also known as an angular motion. ANGULAR, angular motion. Okay. And the third is called the general motion. I'm going to describe each one with very details after this thing. So general motion is nothing. General motion is actually the mixture of translatory plus rotatory. Together their characters is called a general motion. So very basic, simple. Types of basically general, then rotatory, translatory, general, and rotatory. Okay, these are 3 types. Okay, so first जिसने बताया था motion, पहला जिसका translatory था उसका हम types बताया. Translatory basically होते गया. Translatory motion, first thing you have to remember, also called linear motion. If you write and you understand, translatory motion is also called a linear motion. Okay, इसमें क्या होता है? Each point is in a straight line, or curved line. Okay, each point is in a straight line or curved line, and ये travel करते हैं same distance, same speed और same direction. For example, same distance, जो travel करेगा सेम स्पीड से करेगा, क्योंकि जो अगर ये पॉइंट अगर जितना स्पीड चलेगा, ऑब्वियस बात है ये वाला पॉइंट उतना ही चलेगा, है ना. सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन, इधर साइड में जा रहा था, डायरेक्शन किसके इधर साइड में, थोड़ा कप ऑफ वाटर और समथिंग व्हाटएवर इट्स कॉल्ड. तो सेम डिस्टेंस, सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन. ओके, इसके एग्जांपल्स हो गए एथलीट रनिंग ऑन अ स्टेज, स्ट्रेट ट्रैक,
और ईच पॉइंट का लाइक फॉर एग्जांपल फोर आर्म मूव्स। जिसमें मैंने फोर आर्म का एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैं बात ना ध्यान सुनो, समझ में आ जाएगा। ये फोर आर्म है, अगर यहाँ से लेकर हम यहाँ इसका बात कर रहे हैं, तो ईच पॉइंट, चाहे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, है ना, ईच पॉइंट ऑफ फोर आर्म मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, इतना ट्रेवल किया, तो ये भी तो यहाँ, ये वाला जो रीजन था पहले यहाँ था, ये भी तो यहाँ से ट्रेवल किया ना, ठीक है। तो इसमें समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं। सेम डिस्टेंस एट द सेम टाइम, एक टाइम पे, अगर ये अगर एक ही पार्ट है ना, सेम टाइम पे हो रहा है और सेम डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये वाला इधर जा रहा था, ये नीचे जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन जा रहा है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, सो इन रोटेटरी मोशन क्या होता है, जो रोटेशन होता है अबाउट, है ना, रोटेशन जो होगा अबाउट अ फिक्स पॉइंट। रोटेटरी मोशन में जो भी रोटेशन होगा एक फिक्स पॉइंट हरदम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फोर आर्म का रोटेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट ये हो गया हमारा रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट। ओके, दिस इज अ रोटेटरी मोशन, ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, दिस इज अ रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी में क्या होता है, सीधा जा रहा था, रोटेटरी में रोटेट हो रहा है, एंगल टाइप ऑफ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। ओके, रोटेट्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, जो रोटेटरी कैन अकर, रोटेटरी मोशन कैन अकर इफ जो पहला वाला था हमारा विच इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन प्रिवेंटेड होगा। रोटेटरी मोशन जब भी अकर हो सकता है जब ट्रांसलेटरी एक ट्रांसलेटरी हमारा अकर नहीं होगा, जब प्रिवेंटेड होगा। ओके, सो वेरी सिंपल, रोटेटरी मोशन ओनली अकर इफ ट्रांसलेटरी मोशन इज प्रिवेंटेड। ओके, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज अ वेरी बेसिक थिंग, सेम टाइम। ओके, यहाँ पे जो मैंने बता रखा है आपको, सेम टाइम होगा। ओके, उसके बाद कांस्टेंट डिस्टेंस होगा फ्रॉम अ कांस्टेंट पॉइंट। मतलब अगर मैं यहाँ एक कांस्टेंट एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ठीक है, सेम कांस्टेंट डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ये डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है। और उसके बाद हम बोल सकते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस के बाद हमारा सेम टाइम है। टाइम तो एक साथ ट्रेवल करना है, ऐसा थोड़ी कि ये वाला जा रहा था ये नहीं जा रहा, कांस्टेंट टाइम पे जा रहा है ना, यू अंडरस्टैंड। ओके, फ्रॉम अ सेंटर ऑफ एक्सिस, दिस इज अ सेंटर ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस। थैंक यू। रोटेटरी का एग्जांपल होगा हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेग सेगमेंट। ओके, लेग सेगमेंट इज एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा जो कि ये हो गया, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन और एक्सिस, है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ एक्सिस जो भी बोल सकते हैं। यहाँ से क्या कांस्टेंट डिस्टेंस, अगर ये लेग, अगर ये वाला जो रीजन है इतना, इसको हम लेग बोलते हैं, फ्रॉम द नी जॉइंट टू द एंकल जॉइंट, अगर ये हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल हम एक्सटेंशन कर रहे हैं अपने नी का, तो जो ये है ये वाला रीजन, ये हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ एक्सिस, सॉरी रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ एक्सिस। यहाँ से हम अगर एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे जा रहा है, मतलब ये भी और ये भी सेम जा रहा है, सेम टाइम पे जा रहा है ना, ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे जा रहा है, कांस्टेंट सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पे जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ये हो गया इसका जस्ट एग्जांपल ये, तो दिस इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एग्जांपल रोटेटरी मोशन। Okay, after a second we have a third one, that is called the general motion. So what is general motion? General motion is a type of third types of motion, you know, or also a displacement, because हमने पहले बताया displacement और जो motion है सेम होता है बायोमैकेनिक्स में। तो कॉम्बिनेशन जनरल मोशन क्या होता है, बेसिकली सबसे सिंपल रिमेंबर करना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी में पता है ना, पहला टाइप था ट्रांसलेटरी, सेकंड रोटेटरी, तीसरा जनरल है। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का जो दोनों फंक्शन है, यानी ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी टुगेदर इट विल फॉर्म अ जनरल मोशन। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख भी दिया, फर्स्ट और सेकंड टाइप्स को दोनों को एक साथ हम मिला दो, दोनों का फंक्शन, तो वो जनरल मोशन होता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन इन द बॉडी है। मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे बॉडी का रोटेशन होता है, जो भी हम एक यू नो रोटेशन करते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन इन द बॉडी प्रेजेंट, हमारे हर एक एग्जांपल मिल जाएगा अभी। और उसके बाद इट्स रोटेट्स सो बोथ आर द यू नो प्रेजेंट, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, रोटेशन होता है, तो बोथ आर द प्रेजेंट, मतलब ट्रांसलेटरी भी प्रेजेंट है और रोटेटरी भी प्रेजेंट है। ओके, सो बोथ आर द प्रेजेंट, दैट्स तो टुगेदर दोनों का वेरी सिंपल डेफिनेशन, रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी मोशन एंड देयर फीचर्स टुगेदर इट विल फॉर्म अ जनरल मोशन। वेरी सिंपल। अब बुक इस लाइन में आई विल शो यू। अगर हम इसके एग्जांपल का बात करें तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं पुशिंग ट्रीटमेंट टेबल अक्रॉस द रूम। एक कोई ट्रीटमेंट टेबल है जिस पे पेशेंट को करते हैं, उसको हम पुश कर धक्का दे रहे हैं अक्रॉस अ रूम, ठीक है, बाय हैंड। इट डिफिकल्ट टू गेट टेबल टू गो यू नो गो स्ट्रेंथ स्ट्रेट।
अगर कोई टेबल है हमारा ट्रीटमेंट टेबल, उसको हम धक्का दे रहे हैं हाथ से, तो जो बहुत डिफिकल्ट है कि वो सीधा ही जाए, थोड़ा हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा मूव कर जाए, है ना, तो वो क्या हुआ, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी, है ना. After all the types, now we have the factors which determine the motion. Okay, factors. 4 factors affect the motion, just like force. Force is also affect motion. Friction is also affect motion. Inertia is also affect motion. Momentum is also affect the motion. Okay. For example, अगर हम सिर्फ अगर हम force का बात करें पहले, तो force में क्या होता है, जैसे मैं आपको इसको PPT दे दूंगा, PPT इन द सेंस एक PDF बना के मैं आपको डाल दूंगा उसमें. बट अगर हम फोर्स का बात करें तो फोर्स में क्या होता है, जैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका अगर ये इधर जा रहा हूँ, अपोजिट साइड में फोर्स दे रहा हूँ, ये इफेक्ट करेगा, सेम साइड में है तो ये इफेक्ट करेगा. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इधर से फोर्स कर रहा हूँ, है ना, ये इफेक्ट करेगा. उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, कितना ताकत से इस ऑब्जेक्ट का वेट और उसके सब कुछ देखने के अकॉर्डिंग, और उसका किस डायरेक्शन में चल रहा है उसको देखने के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी फ्री, इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सरफेस बहुत रफ है ना, जैसे कि किसी चीज़ को एक टाइल्स पे ले जाना और एक बहुत ही बुरी तरीके से जहाँ पे गिरती और रेट है वहाँ पे धक्का मारना, इट इज टू मच स्ट्रेंथ यू नीड. ओके, दिस आर द एग्जांपल्स. सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ओके, सेकेंड इज फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन क्या होता है बेसिकली, फ्रिक्शन जो होता है, अगर हम बुकिश लैंग्वेज देखें, फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इसके नीचे सरफेस है जो फ्रिक्शन इसको दे रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन देगा. अगर ये इधर डायरेक्शन दे रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका नीचे रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहा है, जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसे अपोजिट डायरेक्शन में इसको होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइक ये एक कोई चीज ऑब्जेक्ट है जो कि इस पर्टिकुलर सरफेस पे मोशन कर रहा है, लाइक दिस, ये मोशन कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी दिस पर्टिकुलर सरफेस, जिसका लोअर पॉइंट होगा, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय रबिंग, ये रब कर रहा है ना इस पर्टिकुलर सरफेस पे, ऐसे क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है जिसको रोकने में काम करेगा, है ना, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन विच अफेक्ट. थर्ड इज कॉल्ड द मोमेंटम. जस्ट फॉर एग्जांपल, थर्ड इज कॉल्ड द मोमेंटम. सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम हम सिंपल समझ लेते हैं, मोमेंटम होता क्या है बेसिकली. ओके, सो मोमेंटम इज लाइक इट इज एन ऑब्जेक्ट मास मल्टीप्लाई बाय द, लाइक पी जो होता है, पी इज स्टैंड फॉर, अगर इसका हम बात करें मोमेंटम का, अगर हम एक फॉर्मूला करें, पी इज इक्वल टू एम वी, है ना. P is stand for momentum, M is stand for mass, and V stand for the velocity. That is called the, V stand for